इलैहि हुदैया इला सिरातिल मुस्तकीम, जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो न हो, उसकी हिदायत हो गई। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मरकब इज़ाफ़ी को मुनादा बनाना ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। मुनादा के हवाले से हमने एक मुफरद लफ्ज़ को मुनादा बनाया, तो उसके शुरू में हमने या लगाया, उससे मानवी तब्दीली भी पैदा हो गई और इराबी तब्दीली भी पैदा हो गई। मानवी तब्दीली और इराबी तब्दीली पैदा हो गई। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि किसी एक लफ्ज़ का हम तर्जमा करना चाहें या एक मुरक्कब का हम तर्जमा करना चाहें, तो फिर इसमें जो जो तब्दीलियाँ आती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आएंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि मदरसे का उस्ताद, तो इसकी अरबी ये होगी मुअल्लिमुल मदरसाती। अब ये उस्ताद यहाँ एक एतबार से फ़ाइली हालत में है। अगर हम इसको यहाँ लिख दें कि ये इसकी फ़ाइली हालत है, तो पढ़ने और देखने में आसानी महसूस हो जाएगी। और अगर हम ये कहें कि मदरसे के उस्ताद को, तो ज़ाहिर बात है जब आप मफ़ूल बना रहे हैं तो उस पर कोई काम सौंप रहे हैं, उससे कोई काम लेना चाह रहे हैं या आप उसको बुला रहे हैं, तो फिर देखिए आप कहेंगे मदरसे के उस्ताद को तो हम इसको ये कहेंगे कि अब ये मफूली हालत में है। तो इसको तर्जुमे में के एतबार से देखेंगे मुअल्लिमल मदरसाती। ये मुअल्लिमन मफूली हालत में था, जब ये मुज़ाफ बना तो ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है। लेकिन पढ़ाई के एतबार से यूँ महसूस हो रहा है कि ये इस तरह से लिखा गया है, मुअल्लिमल मदरसाती। यकीनन इस वक्त ये मदरसे के उस्ताद को मुअल्लिमल मदरसाती इस तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि जब भी दो ज़बरें आएंगी तो फिर उसके साथ एक अलिफ आएगा, वरना अगर आप दो ज़बरें नहीं लगाते किसी इसम के साथ तो फिर वो ज़बर सही पढ़ा जाएगा। अब देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि मदरसे के दो असातिज़ा फ़ाइली हालत में दो असातिज़ा, तो ये फ़ाइली हालत में होगा, दो फ़ाइली हालत में होगा। तो हम मुअल्लिमान ही जो है हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो हम ये तर्जुमा करेंगे मुअल्लिमानी निल मदरसाती। लेकिन इससे पहले हम एक कायदा पढ़ चुके हैं कि यहाँ इराबी तब्दीली भी पैदा होगी और मानवी तब्दीली भी पैदा होगी। तो यहाँ इराबी तब्दीली के एतबार से
اب یہ لکھا اس طرح سے جائے گا معلم المدرساتی، یہ مدرسہ مؤنث ہے؟ جی مدرسہ تو مونس نہیں ہے، کہ آج ویسے مدرسہ لکھا اسی طرح جاتا ہے، مدرسے کے اعتبار سے بھی ہوگا، مونس کے اعتبار سے بھی تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن معلم المدرسہ تھی، اب یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر فاعلی حالت ہے، فاعلی تثنیہ، یہ حالت ہے اس کی۔ پڑھائی کے اعتبار سے دیکھیے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مدرسے کے ایک استاد کو تو معلم المدرسہ تھی آپ یہاں کہہ رہے تھے، اور جب آپ فاعلی حالت میں تثنیہ میں کہہ رہے ہیں معلم المدرسہ تھی، تو پروننسیشن کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے آواز سیم ہے، وہ جو لکھا ہوا ایک الف ہے وہ فرق بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی قرآنی مثالیں بھی ہمیں مل جائیں گی، لیکن یہ قاعدے ہیں عربی گرامر کے، ہیں بہت ٹیکنیکل لیکن ہے بہت آسان۔ لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مفعولی حالت میں مدرسے کے دو اساتذہ کو مفعولی حالت میں تثنیہ لے کے آئیے، مفعولی حالت میں تثنیہ لے کے آئیے، تو آپ پھر اس لفظ سے ڈسکس کر رہے ہیں معلمین۔ جب معلمین آ رہا ہے یہاں پر معلمین، تو اب آگے مدرسہ تھی، تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اس کا نون اعرابی بھی تو گر جائے گا، معنوی تبدیلی اور اعرابی تبدیلی۔ اب یہ نون اعرابی جہاں اس کا گرا ہے، فاعلی کا گرا ہے، اس کا بھی گرائیں، تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ دیکھیے معلمئی، یہ مئی پڑھا جائے گا، یہ نون اعرابی اس کا گر گیا، معلمئی۔ اب آئی ہے وہ بات المدرساتی کہ جو ہم نے آغاز میں پڑھا تھا کہ اگر دو جزمیں اکٹھی ہو جائیں تو ایک جزم زیر لے جاتی ہے، تحریک میں ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اب یہاں یہ جو زبر ہے، میم کے اوپر زبر، یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اپوزٹ جو ہے زیر آئے گی، یا کے نیچے آپ کو یہ دینا ہوگا، زیر دینی ہوگی، تو اب یہ معلمی میل مدرساتی ہو جائے گی۔ اب یہ تثنیہ کی آواز ہے، میم کے اوپر زبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہاں سے تثنیہ آیا تھا۔ یہ ہے اس کی بنیادی بات، ترجمہ کرتے وقت ہمیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ دیکھیے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں ایک بات ہماری فاعلی جمع، فاعلی حالت میں دیکھیے معلمون، اب یہ لفظ ڈسکس ہو رہا ہے، معلمون المدرساتی، قاعدے میں نون اعرابی اس کا گر جائے گا، اور جمع ہوگی تو ایک الف چھوڑ جائے گا۔ یظنون انہم ملاقو ربہم، ایک مثال ہم نے دی تھی، اور وہ مثال دیکھیے، اس نون اعرابی کو گرائیے تو یہاں یہ معلمو الف چھوڑا المدرساتی، معلم المدرساتی، معلم الف نون اعرابی کی جگہ پر لگے گا جمع میں، لیکن جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مفعولی جمع کی جمع دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پیش نظر معلمین ہے،
मुअल्लिमीना मुज़ाफ बन रहा है। मुअल्लिमीना मुअल्लिमीनल मदरसाती, अब इसका नून राबी गिराइए तो अब ये बनेगा मुअल्ली, ये ज़ेर आ रही है, अब यहाँ दो जज़में इकट्ठी हो गई। अब ये ज़ेर बता रही है ये बात जमा की थी, जमा मफूली की थी। अब दो जज़में यहाँ इकट्ठी हो गई तो आप एक जज़म को यहाँ ज़ेर ले लें, यानी हरकत तब्दील करके मुअल्लिमीयल मदरसाती। अब ये जमा की मफूली की अलामत है, ये तस्निया की यही बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन मीम के ऊपर ज़बर जो है वो बता रही है तस्निया मफूली है। यहाँ या के ऊपर ज़बर आपने दी है हरकत के ज़िद में, और यहाँ ज़ेर दी है। अब ये बुनियादी कायदे थे जो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को मुनादा बनाने के हवाले से फाइली, क्योंकि यहाँ आकर आवाज़ें एक जैसी आ रही थी, तो जब तक उन आवाज़ों को मतलब पुकार है, ये लफ्ज़ निदा के बने, हाँ हरफ निदा इसके शुरू में आएगा तो फिर ये मुनादा बनेगा। हम इसको मदरसे का उस्ताद इस एतबार से तर्जमा करते वक्त हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम उसको मफूली हालत में लेके जाते हैं तो ये एक अलहदा सी बात होगी और वो बड़ी दिलचस्प है। देखिए मिसाल के तौर पर हम कहें ए मदरसे के उस्ताद, ए मदरसे के एक उस्ताद। अब जब आप कह रहे हैं मुअल्लिमुल मदरसाती, तो या लगने से मुअल्लिमल मदरसाती, ये अब ये मुअल्लिमुल मदरसाती और इस मुअल्लिमुल मदरसाती में क्या फ़र्क हुआ? यहाँ आप उसको मफूल बना रहे हैं और यहाँ आप एक फ़ाइली को मुनादा बना रहे हैं। आवाज़ें सेम हैं। आप कह रहे हैं ए मदरसे के उस्ताद, और वहाँ आप यानी उनको भी बुला रहे हैं, लेकिन ये मफूली हालत और यानी मुनादा होने के हवाले से भी दोनों आवाज़ें सेम हैं। तो इसको हमने जुदा जुदा उसमें जुमले में हम देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है, कि उसको मफूल बनाकर कोई काम सौंपा जा रहा है या उनको बुलाया जा रहा है। अगर बुलाया जा रहा है तो तब भी तो काम ही सौंपने के लिए बुलाया जा रहा है ना, तो आवाज़ें दोनों की सेम है। अगर आप इसके साथ या ना भी लगाएं तो इसका मतलब ये होगा कि मुअल्लिमुल मदरसाती बात एक ही है। तो ये अब हमारा जो लेसन था वो यहाँ तक हुआ, यहाँ तक हम पहुँचे कि हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में इसमें मारफा की इक़साम तकरीबन हमने मुकम्मल की है।